Assalamu alaikum. Welcome to the class of Business Law course of BBA 4th. Today's our lecture number 2. It's about kinds of contract. What are the basic kinds of contract? Contract are basically divided into some categories, or we can simply say that classify into some categories according to some specialty in the contract. The first one specialty in the contract is according to enforceability. According to the enforceability, how can we divide contract into some kinds? Enforceable means how a contract will be enforceable in law. According to the law, valid contract is a contract which is enforceable by law and which have all the essentials of a valid contract. Already we have discussed the valid essentials of a valid contract in detail. Now this sentence is enough that all the essentials of a valid contract required to become a contract are valid contract. If you find a question in a paper of 20 marks only on this specific topic, you can write essential in detail, or if you don't have such a topic, then you can just write headings of that essentials. You can describe that the essentials of a valid contract are as follow, and you just have to mention the heading of that essentials of the valid contract. Next one is white contract. Before moving towards the white contract, we can simply check the example. A agree to sell a car to B if it fulfill all the essentials of a valid contract. Means that if it fulfill all essentials of a valid contract, then it is a valid contract, and A can simply agree to sell a car and B will agree to purchase it. But if A fails to deliver a car, then B can sue him, and if B fails to pay, A can sue him. Why they both can sue at each other? Because they are because this contract is enforceable by law. That's the reason they both can sue each other. Now the contract is valid, and according to the valid contract, the contract become enforceable by law. Now second one is white contract. The word white means not binding in law. Not binding in law मतलब कानून में आप उसको बाइंड नहीं कर सकते. क्या मतलब हुआ? According to section 2 subsection J, a contract which ceases to be enforceable by law become void when it ceases to be enforceable. ये इसी से क्या मतलब हुआ? ceases का मतलब हुआ कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो ख़त्म हो जाता है enforceable by law. पहले enforceable by law था, लेकिन सीज हो जाता है, enforceable by law नहीं रहता, तो वो वाइड हो जाता है. और जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इस सिचुएशन में आ जाता है तो वो enforceable नहीं रहता. फॉर एग्जांपल, इट मीन्स दैट अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वाइड फ्रॉम द बिगनिंग. इसका मतलब है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं था स्टार्ट से. पहला हमारा enforceable by law था, बाद में कुछ रीजंस आ गए जिसकी वजह से वो enforceable by law नहीं रहा. तो जो भी रीजंस आ गए जिनकी वजह से वो enforceable by law नहीं रहा, तो वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया है. when it is made but subsequently it become void due to certain reasons. लेकिन बाद में वो वाइड हो गया कुछ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से. मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट में वैलिड होता है. जो हम लोगों ने तमाम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स पढ़े थे, वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट होता है. तमाम एसेंशियल्स उसमें अवेलेबल होते हैं और इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, लेकिन बाद में कुछ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से वो वैलिड नहीं रहता. नाउ ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज़. वाइट कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज़ क्या होंगे? ऑब्वियसली दे विल बी नॉट लीगली रिस्पॉन्सिबल टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइट. सो द क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, why a valid contract become void? What's the basic reasons due to which a valid contract become void? So these specific reasons are as follow. First, impossibility of performance. वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहता. मतलब क्या हुआ काबिल नहीं रहता? First of all, always I prefer to take an example. A agreed to sell his house to B for 2 days. After 2 days, the house is burned next day. अब उसने घर ही उसका जल गया है, तो वो कैसे वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को परफॉर्म कर सकेगा? अब वो उसे परफॉर्म नहीं कर सकता. दैट्स वाई द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइड. नाउ मूव टुवर्ड्स द स्पेसिफिक वर्ड्स ऑफ लॉ. अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. क्योंकि हम उसे परफॉर्म नहीं कर सकते. अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड बिफोर परफॉर्मेंस, यानी वो परफॉर्म करने से पहले ही जो है वो क्या हो गया है? वाइड हो गया है.
व्हेन इट बिकम्स पॉसिबल टू बी परफॉर्म, यानी अब पॉसिबल नहीं रहा हम उसे परफॉर्म कर सके। परफॉर्मेंस करने से पहले ही आपका कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया और अब उसे परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं रहा, ठीक है, बाय एनी पार्टी, किसी भी कोई भी पार्टी जो है उसको परफॉर्म नहीं कर सकती किसी भी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से। सब्सीक्वेंट इलीगलिटी, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइड बाय सब्सीक्वेंट इलीगलिटी। सब्सीक्वेंट इलीगलिटी का मतलब क्या है? परफॉर्म करने से पहले पहले वो इलीगल हो गया है कुछ स्पेसिफिक रीजंस की वजह से। सपोज नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल। ए एग्री टू सेल 100 बैग्स ऑफ वीट टू बी। ए एग्री है कि वो 100 बैग्स जो है वो बी को बेचेगा। बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी से पहले पहले हुकूमत ने प्राइवेट ट्रेड पर बैन लगा दिया है कि वीट कोई भी प्राइवेटली ट्रेड नहीं करेगा, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड बन गया है। रिजेक्शन ऑफ अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइड व्हेन द पार्टी हुज कॉन्सेंट इज़ नॉट फुली द ऑब्जेक्ट कॉन्सेंट। अब समझ नहीं आ रही कि आपके सेंटेंस से क्या मतलब हुआ। देखिए, इसका मतलब ये है कि वाइडेबल होता है, कोई भी एक पार्टी उसे रिजेक्ट कर सकती है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था उस वक्त, उस पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, एनवायरनमेंट ऐसी थी या बाय फोर्स उसे एक्सेप्ट करवाया गया है, लेकिन बाद में उसे जो ही उसको मौका मिले वो उसे रिजेक्ट कर सकती है। जैसे ए फोर्सली बाय बीस कार फॉर ₹20,000। ए ने बी की कार बाय जोर ज़बरदस्ती से 20,000 की ख़रीदी है। नाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। बी में एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट। अगर बी एक्सेप्ट कर लेता है तो वो वैलिड हो जाएगा, अगर रिजेक्ट कर देता है तो वो वाइड हो जाएगा। फिर हम दोबारा बात करें वर्ड्स की तरफ। A wideable contract becomes wide